Pradhyan Education. This is Sneha Shah, your tutor. In this video, we will be starting your chapter number 1, real numbers. इससे पहले हमने already कुछ सारे chapters upload कर दिए हैं. This is the second last chapter in your series. इससे पहले we have uploaded the chapters 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7. This is chapter number 1 and we are left with second chapter. इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग टू मेजर कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर. वन इज़ अबाउट रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो है कोप्राइम्स का, और दूसरा मेजर कंसेप्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जिसके बेसिस पे आपका आगे का चैप्टर डिपेंड करता है. दिस चैप्टर विल हैव ओनली 3 वीडियोज़ बिकॉज इट्स अ शॉर्ट चैप्टर, इट्स अ वेरी ईजी चैप्टर. सो आप ईजीली ये चैप्टर 2-3 दिन में कवर कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियल नंबर्स आर, व्हाट रैशनल नंबर्स आर एंड व्हाट आर कोप्राइम्स, राइट. सो रैशनल नंबर्स आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो. सी द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स रेशियो. ओके, सो रैशनल नंबर्स आर a form in which you can write a particular number in the form of a ratio or a fraction. But what is special about a fraction or a rational number? What's the difference? The difference is rational number में एक तो Q 0 नहीं होता है, वो fraction में भी नहीं होता है, because in denominator if you take a denominator as 0 then it becomes a non-existent number, right? Anything divisible by 0 is not existent, it does not exist, it's not possible. और दूसरा एक important necessity है that P and Q have to be co-primes. अब co-primes क्या है? Obvious question होगा कि co-primes क्या है. So you have understood what primes are. In the previous classes we have known what prime numbers are. See, prime numbers क्या होते हैं? जिनके 2 factors होते हैं सिर्फ, the number itself and 1. Okay, like we start with 2, 3, 5, 7. Is 9 a prime number? No, because it has more than 2 factors. 3 is also a factor of 9, so 9 is not. 11, 13, 17 and so on. Obviously there are infinite prime numbers, but when we talk about co-primes, co stands for common, मतलब दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 नंबर्स की हम बात कर रहे हैं. तो इट इज़ co-primes आर अ पेयर ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है. इंडिविजुअली दे कैन बी कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट मतलब ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. पर इन दोनों में मतलब co-primes में the 2 numbers individually can be composite, but when written together as a fraction in the form of P upon Q, then they cannot be further simplified. For example, I am using let's say 16 and 25. क्या 16 prime number है? नहीं है, because it has factors. The factors are 1, 2, 4, 8. These are all factors of 16. 25 के factors हैं 1, 5, 25, right? So individually these 2 numbers are composite numbers. But when I write these 2 numbers as fraction, 16 by 25 or 25 by 16, can I reduce this further? No. Can I simplify it? No. So when written in this form, they are called co-primes. Okay. So ये co-primes वाला जो concept है वो आपको end में काम आने वाला है in the last concept of your chapter where you have to prove a certain number irrational. ठीक है, तब हम देखेंगे कि कैसे इस fact को हम use कर सकते हैं कि P upon Q या A upon B या M upon N, whatever variables you have in the form of a fraction can be proved कि ये irrational number है. ठीक है, ये कैसे use कर सकते हैं prove करने को कि ये irrational है. ओके, सो दैट इज़ योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और कोप्राइम्स क्या हैं. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अरिथमेटिक इंक्लूड्स द नंबर्स, द नंबर लाइन, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स,
factors, multiplicatives and multiples, everything related to numbers. जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो it covers variables and equations and everything like that, right? So इसमें क्या है, the concept is very basic कि जब आप कोई भी composite number ले रहे हैं तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज प्राइम नंबर्स जो हैं वो फैक्टराइज नहीं होते हैं, उनके कोई फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, राइट? तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कैसे होंगे, वो प्राइम नंबर्स ही होंगे. सो द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, as a product of prime numbers, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. What does it mean when I say कि this factorization is unique? जैसे एक कोई भी एक simple example लेते हैं, let's take a number like 75, okay? So इसका prime factorization क्या होगा? 3 25 5 5 5 1. सो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कि 3 एक बार आता है और 5 2 बार आता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ यूनिक. देयर इज़ नो अदर नंबर जहाँ पे 3 एक बार आता है और 5 2 बार आता है अपार्ट फ्रॉम 75. ऑब्वियस है, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. सो दिस इज कॉल्ड दैट द फैक्टराइजेशन इज यूनिक. कोई भी नंबर के लिए ये यूनिक ही आने वाला है, राइट? एंड apart from the order in which the numbers occur, मतलब this can be written as 5 square into 3, this can be written as 5 into 3 into 5, correct? Whatever you wish you can write it in any order, but the answer or the complete composite number is going to remain unique. Clear? So that is basically the concept of fundamental theorem of arithmetic. इसको यूज़ करके we are going to understand 2-3 things. एक तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई भी नंबर का फॉर्म कैसा होता है, विच इज़ एग्जाम्पल 1. दूसरा है HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एंड देन देर इज़ अनदर कंसेप्ट ऑफ प्रूविंग अ नंबर इरेशनल, जो हम पिछला जो कंसेप्ट समझा को प्राइम्स वाला उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है? लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन विद एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 में ये बोला है कि आपको चेक करना है कि 4 raised to power n, where n is any natural number, क्या ये जो वैल्यू आएगा, अगर n1 है तो 4 raised to n, n2 है तो 4 raised to 2, तो ये जो वैल्यू आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n कैन दिस नंबर एंड इन 0, ठीक है? तो इसको हमें करना क्या है, इसको करना है प्राइम फैक्टराइज. तो ये प्राइम फैक्टर्स इसके ऐसे आएंगे, करेक्ट? इसका ये मतलब है कि 2n टाइम्स और 2n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? अब आप बताओ कि अगर 2 ही आ रहा है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में, तो इज इट गोइंग टू गिव यू 10 एनीवेयर? नो, बिकॉज फॉर 10 टू अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन यू नीड 5 समवेयर, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 10 आ सकता है, बट ये 10 कब आएगा? और फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो ऑब्वियसली दैट एंटायर नंबर विल एंड और विल हैव यूनिट्स डिजिट एज 0. बट हियर डू वी हैव 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं. व्हाट डू वी हैव इन प्राइम फैक्टराइजेशन? इट इज 2 raised to n, 2 into 2 raised to n. So where there is no 5 in the prime factorization with 2, अकेला 5 होगा तो भी 10 नहीं आएगा. सो द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट हैव 2 and 5 टुगेदर. मतलब अगर आई एम टेकिंग इसकी जगह पे 20 raised to n होता, ठीक है, तो क्या ये जो आंसर आएगा क्या वो एंड करेगा 0 में? तो येस इट विल, बिकॉज 2 into this is 2 into 2 into 5, करेक्ट? सो ये 2 into 5 will automatically give you 10, तो वो यहाँ पे 0 में एंड करेगा. सो what you should write in your answer is here 4 raised to n is equal to 2 into 2 raised to n, in which the factor of 5 does not occur, or prime factors of 4 raised to n does not have 5 in it.
therefore it is not possible to have 0 in the units digit of 4 raised to n. clear? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 भी सेम है, सेम चीज़ पूछी है, क्या 6 रेज टू n एंड कर सकता है 0 में? तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्राइम फैक्टराइज करने पर विल गिव मी 2 into 3 एंड नॉट 2 into 5. क्लियर? ओके. क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज कि क्या ये जो नंबर दिया है 7 into 11 into 13 plus 13, क्या वो कॉम्पोजिट नंबर है? तो what is a composite number according to the theorem of arithmetic? It is a number that can be expressed in terms of as a product of its prime factors. So ये आप देख रहे हो, ये तो मल्टीप्लिकेशन है बट यहाँ पे एडिशन है, तो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दो टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लिया, तो आई गेट 7 into 13 plus 1. करेक्ट? So this is 13 into 78. 78 को I am prime factorizing again. तो ये क्या आएगा? 2 3 जा 6, 9 जा 3, 13 जा 13, 1 जा. तो this is coming out to be 13 into 3 into 2. तो ये बेसिकली आपका क्या आया? प्रोडक्ट 2 into 3 into 13 स्क्वेयर. करेक्ट? तो इज इट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? तो येस इट इज, देयरफॉर दिस गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर. आपको इसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो द आंसर इज येस. क्लियर? ओके. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन. सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 5 कॉमन है, तो लेट्स टेक 5 कॉमन. अंदर बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Okay, what I get here is 5 into 1009. On multiplying all these, what I get here is 1009 and then I add 1, so I get 1009. Okay, now 1009 is itself a prime number. Okay, अगर आप उसको फैक्टराइज करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. It itself is a prime number. So 5 into 1009 itself is a product of prime factors of this given number. Getting it? So you can say कि as this can be expressed as a product of its prime factors, it is a composite number. Clear? So that is about your rational numbers, co-primes and fundamental theorem of arithmetic. और उससे एग्जाम्पल्स हैं, रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड कि HCF और LCM कैसे फाइंड आउट होता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इज थैंक यू सो मच.